after that we'll go for loop. So basically, uh, for loop is somewhat different in Python, and while loop is same like whatever you are using C, C++, and Java. Okay. So first of all, how we define while loop is, let's consider these are some statements we are having, and then after that we can write here a while loop, and that is I am just showing you how we do it in Python, C or C++. So this is how do we write in C and C++. So let's consider we are having, let's here I plus plus, and here I is equal to 0. So this particular loops, what it does, it prints or it generates the number from 0 to 9. सर आय थिंक कोणाचा तरी माईक चालू आहे त्याच्यामुळे इको येतोय. कोणाचा तरी माईक, ओके ओके झालं, ओके ठीक है. सो this is what you write in C programming, C or C++. So this is the flow of execution of loop. I initialize to 0, and then after that I is going to be check whether it is less than 10. If it is true, it is going to be executed in this sense I plus plus, and then again we are going to check for the condition. Whenever this condition is going to be false, we are just going to be out of the for loop, and then after that we can execute this out of while loop statements. Okay, so ये while loop है. So if it is false, if this condition is false, we are just going to see the statements, whatever we are having out of the while loop, that are going to be executed. So this is what the flow of while loop in C and C++. Now I will show you how it is going to be executed in Python. So in Python, again, let's consider we are having some statements over here. I is equal to 0 we are having, likewise, and then after that some statements here we are having while, same like this. For condition, we should not write any brackets. So it is okay if we don't write any brackets. Okay. So these brackets are not actually required in Python. So this is start of a scope. So generally, how do we define start of scope? Using this opening curly bracket in C and C++. But in Python, we do write using this LO or whatever that is colon. So in while loop, this is going to be your statement. So that must be like your इंडेंटेड स्टेटमेंट्स. तो ये इंडेंटेशन चाहिए कि ये जो स्पेस है ना, दैट इज गोइंग टू बी इंडेंटेशन. तो ये छोड़ के आप स्टेटमेंट लिखोगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने किया आई इज इक्वल टू आई प्लस वन. ठीक है. सो आप बोलोगे आई प्लस प्लस क्यों नहीं, बिकॉज आई प्लस प्लस डजंट वर्क इन पाइथन. ठीक है. सो ये आई इज इक्वल टू आई प्लस वन ही लिखना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट किया आपने वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट एंड ऑफ वाइल लूप. उसके बाद में फिर से वापस आएंगे वाइल लूप के बाहर. वाइल लूप के बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंडेंटेशन छोड़ के बाहर आना पड़ेगा. सो दीज आर द स्टेटमेंट्स, दीज आर इन वाइल, आउट ऑफ वाइल लूप. Okay, so this is what the flow. I will be initialized to 0, then after that it will be checked whether it is less than 10. If it is true, it is going to be entered into the while loop, and then after that I plus plus, and after execution of this statement again it is going to be over here. So it will get executed while this condition is true. Now let's, if this condition becomes false, it is just going to be out of the for loop, and now it is going to be executed over here. This is if your condition is false. This is if your condition is false, and now after that in sequence it can go ahead. So you can just simply compare these two loops. ये दोनों loops आप simply compare कर सकते हो. So it is just like, only difference is that here is the difference, and while we are having this indentation, so we don't have these brackets, and again we are having some colon over here. That's the statements in the while loop. चालू करें Krishna's mic is on. Okay, so please mute yourself. Krishna Rathod, so his mic is on. Please, please mute yourself. ठीक है.
This is what is the difference between while loop in C and C++ and while loop in Python. Okay. Yes, this is what the simply thing. I will just show you one example in a code how we can write a while loop. We'll just print some 1 to 10 number or 0 to 9 numbers like this. So let's initialize I is equal to 10. Now I'm just going to write while condition is I less than 10. Of loop, I will just print end of loop. So ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा because it is not inside while, it is out of while statement. ठीक है. So if we do that, print I, why it is not printing I is equal to, sorry, 0, 10, 9, 0. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट द आउटपुट इज. सो देखो ये जो है ना, ये लूप का पार्ट है, ये लूप का पार्ट है एंड ये आउट ऑफ द लूप है, इसलिए ये एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ. अगर मैंने यहाँ पे गलती से भी टैब दिया तो इट इज गोइंग टू बी इनसाइड योर वाइल लूप. सो देखो आपका आउटपुट कैसे आएगा. दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज. ठीक है. सो ये गलती से भी अंदर नहीं रहना चाहिए, इसको बाहर निकालता हूँ लूप के में एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट. सो दैट इज व्हाट योर वाइल लूप इज. दैट इज व्हाट योर वाइल लूप इज. नाउ नेक्स्ट, ये वाइल लूप में इतना ही है देखने लायक. सो नेक्स्ट विल गो एड फॉर चेकिंग योर for loop. ठीक है. So how do we use for loop? To use for loop we must know how range function works. Basically we should not call it as a range function. Basically function नहीं, ये जनरेटर है. तो ये जनरेटर वगैरह ये थोड़ा सा एडवांस पाइथन में आता है, लेकिन जिनको पता है उनको समझ में आ रहा होगा जनरेटर है. तो इट इज लाइक फंक्शन. सिर्फ इसका, इस फंक्शन का काम ये होता है कि ये नंबर जनरेट करने का काम करता है. तो मुझे क्या करना है, 0 से 9 तक के नंबर जनरेट करना. सो व्हाट आई विल डू, 0 से लेकर 9 तक मतलब 10. तो ये है आपका स्टार्ट. तो स्टार्ट इज इंक्लूसिव, दिस इज योर एंड, एंड इज एक्सक्लूसिव. सो 9 तक ही जाएगा एंड देन आफ्टर दैट आपको कितने से इंक्रीमेंट करना है एवरी टाइम, 1 से. इट इज सेम लाइक योर स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये फंक्शन के पैरामीटर्स है. so if you do create its object, it is going to be your kind of object. so ये आपका ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ. अगर आपको इसके वैल्यूज भी प्रिंट करने हैं तो ये वैल्यूज आप इसके ऐसे प्रिंट कर सकते हो. सो आप इसको बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ दिस. तो ये आपको ये से वैल्यूज मिलेगी 0 से लेकर 9 तक. तो बेसिकली ये लिस्ट वगैरह क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने बताया कि जब मैं ये इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, तो जो भी आपको दिखाई दिया अभी, ये इसका ऑब्जेक्ट था. ठीक है. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट रेंज. ठीक है. सो एक बार इसका आपने टाइप देखा, इट इज गोइंग टू बी लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ रेंज क्लास दिख रहा है. सो प्रिंट में आपको क्लास भी दिखेगा. सो इट इज बिलोंग्स टू क्लास रेंज. तो रेंज नाम का एक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है मस से. ठीक है. सो ये बना है. तो whenever we have to create a range of values, we need to use this kind of object in a for loop. अभी जो ट्रेडिशनल वे था फॉर लूप बनाने का, सो कहाँ पे, यहाँ पे. तो ट्रेडिशनल वे जो है आपका फॉर लूप बनाने का, दैट वोंट वर्क हियर. मतलब जो भी हमने यूज किया था, लेट्स फॉर लूप वी आर हैविंग फॉर लूप. तो फॉर लूप में सी सी प्लस प्लस में कैसे होता है फॉर लूप, दैट इज फॉर I is equal to 0, I is less than 10 and I plus plus, and inside this we can just print printf percent %d and what is I, we are going to print it. So this is what the for loop in C, C++ or Java. Now I will just write a loop in Python. तो पाइथन में फॉर लूप कैसे होता है. सो पाइथन में फॉर लूप ऐसे होता है. सो लेट मी राइट
सिंपली ऐसे लिखना पड़ता है आपको, फॉर ये जो है ना, ये चीजें, ये तीनों चीजें आपको रेंज के थ्रू मिलती है। मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, <10 तक जाना है, यानी हर बार कितने स्टेप से इंक्रीमेंट करना है, 1 स्टेप से इंक्रीमेंट करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज 1, 10, sorry 0, 10, 1. Here we are starting the scope, and now we can just print here, print I, print I. So ये इंडेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, ये टैब दे के आपका प्रिंट आई होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग इनटू योर फॉर लूप, दैट इज व्हाई इट इज कमिंग इनटू फॉर लूप। सो दैट इज व्हाट योर फॉर लूप इज। सो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, इसका भी रिजल्ट एंड इसका भी रिजल्ट दोनों का सेम होगा। तो सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू हैव, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट्स create it into the code. So for I in range that is 0, 10, 1, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 ही होता है स्टेप, सो अगर नहीं लिखा तभी भी चलेगा, नो इश्यूज, एंड आई विल जस्ट प्रिंट I, and if we see this is what it is, this is what it is. So ये आपका रेंज फंक्शन, दिस इज व्हाट योर फॉर लूप इज, दिस इज व्हाट योर फॉर लूप इज। अगर आपको वैल्यूज 20 से लेकर 50 के बीच में अगर आपको इवन वैल्यूज अगर प्रिंट करने हैं ओनली, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट फ्रॉम 20 to 50। ये इवन वैल्यूज है इन बिटवीन 20 to 50। एंड अगर ये आपको एक लाइन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, इस प्रिंट फंक्शन में आपको this particular value of I is going to be ended by space। इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू प्रिंट करो, स्पेस दे दो, आई का वैल्यू प्रिंट करो, स्पेस दे दो, आई का वैल्यू प्रिंट करो, स्पेस दे दो। बाय डिफॉल्ट जो एंड होता है ना वो स्लैश एन होता है, बाय डिफॉल्ट एंड इज स्लैश एन, दैट इज व्हाई हर एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन को जा रहा है। सो सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू हैव नाउ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्पेस डाला तो इट इज गोइंग टू बी इन द सेम लाइन, ये एक ही लाइन में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर एवरी स्टेटमेंट वी हैव जस्ट गिवन द स्पेस। अगर आपने हर एक स्टेटमेंट के बाद कॉमा देना है तो यू कैन जस्ट गिव कॉमा लाइक दिस, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज जस्ट वी कैन कॉन्फ़िगर द प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज, मुझे 1 से लेकर 20 के बीच में, 0 to 20 के बीच में जितने भी सारे इवन ऑड नंबर्स है उनके क्यूब या तो स्क्वायर्स मुझे देखना है। तो क्या करेंगे हम, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 20 के बीच में, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 से स्टार्ट करूंगा एंड स्टेप इज गोइंग टू बी 2, and every time I will just print their square, so I into I, that's it। अभी मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू भी दिखना चाहिए एंड वो उसका स्क्वायर भी दिखना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू भी एंड सॉरी वैल्यू भी एंड उसका स्क्वायर भी, तो मैं करूंगा आई कॉमा आई स्क्वायर। सो ये वैल्यू भी दिखेगा एंड उसका स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लाइक वाइज। नाउ yes, any doubt? ठीक है। So now here we are having values that is I and I square। ये दोनों दोनों जो values है that are being separated by space। लेकिन मुझे कैसे चाहिए रिजल्ट, 1:1, 3:9, 5:25। अगर ऐसा चाहिए तो क्या करेंगे हम, पाइथन में अगर एक प्रिंट में एक से ज्यादा वैल्यूज आप प्रिंट कर रहे हो तो वो वैल्यूज कौन से कैरेक्टर से सेपरेट आउट हो गए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है कि वो स्पेस से सेपरेट आउट हो गए। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं ना, आई एंड आई का स्क्वायर, तो बोथ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय डिफॉल्ट स्पेस। तो मुझे ये बाय डिफॉल्ट सेपरेट आउट करने हैं, बाय सेपरेटर इज इक्वल टू कोलन।
तो इट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय कोलन। तो एक का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर इज 121 लाइकवाइज। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज फॉर लूप। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर लूप भी हम यूज कर सकते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया अभी आपको कि whenever we are going to use if or decision control, we must know some operators, we must know some operators। आपको पता है एक्चुअली, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ मैं, बिकॉज जनरली ये नंपाई के टाइम पे ये हमें थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर्स मुझे यहाँ पे बताना है, लेकिन along with that I will tell you all the operators। so अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन मॉड, देन क्वोशिएंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वन स्लैश एंड डबल स्लैश में क्या डिफरेंस है? यू कैन जस्ट सी। अगर मैंने किया 25 डिवाइड बाय 4, so what you are going to get is द रिजल्ट समथिंग लाइक दिस। तो इसमें ये एक्चुअल रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ व्हाट वी कैन से रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर देखना है आपको, तो आपको रिमाइंडर ऐसे मिलेगा। सो रिमाइंडर इज 1। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, सो क्वेश्चन मतलब सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो आप ये करो। सो इट इज जस्ट गोइंग टू रिटर्न व्हाट 6। आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो मॉड यूज करो, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो डबल स्लैश यूज करो, एंड रियल रिजल्ट चाहिए तो आप यूज करो सिंगल स्लैश। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। उसके बाद में हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन है हमारे पास, ग्रेटर देन हमारे पास, लेस देन इक्वल टू हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास, देन आफ्टर दैट इक्वल टू हमारे पास, देन नॉट इक्वल टू है। तो दीज आर सम रिलेशनल ऑपरेटर्स वी आर हैविंग। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना, इनकी इनमें कैसे खासियत होती है कि इनका जो आउटपुट होता है ना, वो हमेशा आइदर ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ये जो ऑपरेटर्स है ना, इनका आउटपुट हमेशा ट्रू या तो फॉल्स ही रहेगा। सो यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर। अगर मैंने किया 25 लेस देन 30, तो ये बोलेगा ट्रू है। अगर मैंने बोला 25 इक्वल टू 30, तो ये बोलेगा ये फॉल्स है। अगर मैंने बोला 25 नॉट इक्वल टू 30, इट इज गोइंग टू टेल अस दैट यस यू आर ट्रू। ठीक है। सो दिस इज अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो ये सारे ऑपरेटर्स आपको ऑलरेडी पता है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास है एंड और नॉट। तो इन सी सी प्लस प्लस एंड के लिए आप ये यूज करते हो सी सी प्लस प्लस। यहाँ पे एंड के लिए यू हैव टू यूज डायरेक्टली रिजर्व वर्ड। सो एंड और के बाद में नॉट के लिए नॉट। ओके, कैन आई से दैट फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो योर आउटपुट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम थिंग लाइक ट्रू और फॉल्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना, उनका आउटपुट भी हमेशा ट्रू या तो फॉल्स ही होता है। तो दे आर आल्सो गोइंग टू हैव ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। उसको अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल वो चेक करना है कि वेदर गिवन नंबर इज इन बिटवीन 40 एंड 50। तो मैं क्या चेक करूंगा कि फॉर एग्जांपल नंबर नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 45, एंड मुझे चेक करना है कि इन बिटवीन 40 टू 50 है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ग्रेटर देन 40 एंड नंबर लेस देन 50। ये दो कंडीशंस को मैं कनेक्ट करूंगा यूजिंग व्हाट एंड। अगर दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है ये इन बिटवीन 40 एंड 50 है। तो यस, आंसर इज व्हाट ट्रू। तो इसका मतलब क्या, ये जो एंड है ना, एंड हो और हो, ये दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ट्रू या तो फॉल्स। नॉट भी होता है हमें, तो नॉट को कैसे लिखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इफ आई डू नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू इज व्हाट फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स इज व्हाट ट्रू। सो दैट इज व्हाट योर लॉजिकल ऑपरेटर्स आर। सो ये भी आपने यूज किए हैं
नॉट के लिए आई थिंक एक्सक्लेमेटरी मार्क था आपके उसमें सी सी प्लस प्लस जावा में. नाउ अगेन वी आर हैविंग बिटवाइज ऑपरेटर. तो दीज ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवाइज ऑपरेटर, बिकॉज ये हम यूज करने वाले हैं डेटा साइंस में आगे जाके. बिटवाइज ऑपरेटर्स आर अगेन वी हैव एंड है, और है, उसके बाद में नॉट है. नॉट को एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर में हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये कौन से ऑपरेटर है? सो बिटवाइज एंड करना है तो सिंपली एंड वी आर हैविंग. बिटवाइज और करना है तो सिंपली और वी आर हैविंग. एंड बिटवाइज नॉट करना है तो सिंपली टिल्ट ऑपरेशन वी आर हैविंग. तो ये है बिटवाइज ऑपरेटर्स. अभी नाउ क्वेश्चन, माय क्वेश्चन टू इज दैट whatever bitwise operators we are having, is it true that their result is also going to be true or false always? Is that true? Bitwise का result always true and false ही आएगा क्या? क्या लगता है आप लोग? Please put your views into that box. ओके, काफी लोग बोल रहे कि ऐसा नहीं है सर, बिटवाइज ऑपरेटर का जो रिजल्ट है ट्रू फॉल्स हो ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है. सो लेट्स सी. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 5 एंड मतलब बिटवाइज एंड 5 and 4 किया. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट? 5 and 4. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. 5 and 4 रिजल्ट इज 4. अगर मैंने किया 5 और 4, what is going to be the result? Result is going to be 5. Yes, any doubt? And if I do not of 5, अगर मैंने not of 5 किया, what is result? Result is -6. So yes, you are true कि जो भी आपके रिजल्ट आएंगे इन बिटवाइज ऑपरेटर्स, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स. तो ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं होते रिजल्ट इसके. we can have numbers as a result also. So now my next question is that from where these 4, 5 and -6 came? या हमारे जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट आए कैसे? ठीक है, सो इनको समझने के लिए लेट्स गो टू आवर ब्लैक बोर्ड. नाउ वी कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स. तो पहला जो है ये एंड. तो नाउ फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 5 and 4. सो 5 and 4 ये इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये बिट वाइज होता है. तो व्हाट आई विल डू, ये 5 को बिट पैटर्न में मैं कन्वर्ट करता हूँ. बिट पैटर्न में 5 को कैसे लिखते हैं? 5 मीन्स 4 + 1, सो 101. तो इन बिट्स इफ आई डू प्रिंट इट लाइक दिस, 8 बिट में मैं लिखता हूँ. एक्चुअली ये कितने बिट में होना चाहिए? 32 बिट में लिखना चाहिए मैंने, लेकिन कैसे कि ये बहुत ही बड़ा होगा एंड दैट इज यूजलेस. तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 8 बिट फॉर्मेट में ही. तो दिस इज योर 5 इज. नाउ आई विल राइट 4. 4 is, how do we write 4? This is 100 and now this nibble is going to be all zeros. तो ये 5 and 4 है. इफ आई डू एंड अभी मैं करता हूँ दोनों का. तो दोनों का एंड मतलब अगर 1 and 0 है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 0. अगर 1 and 1 है तो इट इज गोइंग टू बी 1. 0 and 1 है, इट इज गोइंग टू बी 0. 0 and 0 इज गोइंग टू बी व्हाट? 0. एंड का मतलब है कि अगर एक भी 0 होगा तो रिजल्ट इज 0. और का मतलब है कि अगर एक भी 1 होगा तो रिजल्ट इज 1. सो 1 0 0 0 0 0 1 1 1, बाकी के सारे zeros. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज दिस? दिस इज 4. अभी और करता हूं मैं. और ऑपरेशन में क्या होगा? अगर एक भी
1 है तो इट इज गोइंग टू बी 1, सो 1 और 1, 1 और 0 इज ऑल्सो 1, 1 और 1 नहीं, 0 और 1 इज ऑल्सो 1, सिर्फ 0 और 0 के लिए क्या आएगा, ये 0 आएगा. सो नाउ इन दैट केस दिस इज 1 और 0, 1 और 0 इज व्हाट 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, बाकी के सारे जीरोज ही है. तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज गोइंग टू बी व्हाट 5. तो इसलिए एंड का रिजल्ट 4 आया और का रिजल्ट 5 आया. नाउ विल डू नॉट ऑफ 5. अभी नॉट ऑफ 5 करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा. सो लेट मी डू दैट. नॉट ऑफ 5 इज, सो नॉट ऑफ 5 मतलब अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो मैं ऊपर लिखता हूँ नॉट ऑफ 5. सो नॉट ऑफ 5 इज गोइंग टू बी, ठीक है. सो ये 0 है तो इसका 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1. अगर ये 32 बिट में होता तो ये जो आगे वाले सारे जीरोज ना वो भी 1 ही होते. ये 0 का 1, ये 1 का 0, ये 0 का 1, ये 1 का 0. Now this is what the bit pattern you are going to get after doing bitwise bitwise not of your 5. Now अभी इसका रिजल्ट कैसे आएगा देखो. whenever we are going to read this kind of numbers, आपका जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, ये जो सिस्टम है आपका, सो दैट ऑलवेज लुक्स फॉर एमएसपी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव नंबर. अगर ये 0 है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट पॉजिटिव नंबर. तो ये नेगेटिव है का पॉजिटिव, देखो ये सारे क्या है, 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर्स है. देखो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सारा लिखा है. लेकिन ये जो 1 है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव नंबर है. नाउ अभी नेगेटिव नंबर है तो मुझे साइन पता चला. अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. अगर 0 होता तो उसका मैग्नीट्यूड भी कैसे होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन टू डेसिमल. so डायरेक्टली डेसिमल फाइंड आउट करो, दैट इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ योर पॉजिटिव नंबर. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टूज कॉम्प्लीमेंट से आएगा, क्योंकि योर नेगेटिव नंबर्स आर एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट. तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट से बाहर निकालने के लिए हमें फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है. सो यस, आई विल जस्ट डू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ 5. तो इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, सो दैट इज व्हाट 1 1 1 1 एंड 1 0 1 0. सो दिस इज व्हाट योर -5 इज, सॉरी माइनस नहीं, नेगेशन ऑफ 5 इज. so this is what your number is. अभी इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका टूज निकालते हैं. टूज निकालने के लिए पहले वंस निकालेंगे एंड उसमें एक ऐड करेंगे. सो वंस निकालता हूँ मैं इसका, 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा. सो 0 का 1, 1 का 0, बाकी सारे जीरोस का, सॉरी वंस का 0 होगा. सो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकला प्लस 1. सो ये होगा आपका टूज कॉम्प्लीमेंट. सो 1 प्लस 1 इज 0, कैरी आया 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 as it is, बाकी का सारा. Now this is what the magnitude of your number. So what is this number? This number is 6. So yes, what is your magnitude? That is 6. Your magnitude is 6. And what is your sign? That is negative. So your answer here, answer is going to be what? -6. Your answer is going to be what? -6. Now the question for you is that if I do negation of 12, what is the answer? Just find out. Negation of 12, find out the answer. You can try by yourself. You have to try by yourself. I will wait for your response. वेरी गुड. जो लोगों ने बोला है -13 इज द राइट आंसर. ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो. ये जो -12 है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 12 को लिखेंगे हम 8
plus 4 is 12, so this is your 12 is minus sorry, negation of 12 is going to be what? 1 1 1 1 0 0 1 1. So this is your negation of 12. इसको रीड करते हैं, अभी रीड करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट. सो पहले वंस लेते हैं, ये वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 क्या करेंगे ऐड, तो इट इज गोइंग टू बी अ नंबर. सो 12 प्लस 3, सो नेगेटिव 13 इज द आंसर. -13 इज द आंसर. ठीक है, -12 नहीं आना चाहिए, -13 इज द आंसर. ठीक है, सो शायद आपने ये 1 ऐड करना भूल गए आप. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर बिटवाइज ऑपरेटर्स आर. दीज आर योर बिटवाइज ऑपरेटर्स. नाउ एक एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, और एक क्वेश्चन बेसिकली द क्वेश्चन इज if we do multiply, not multiply, if we do bitwise ending of 6 and for example -13 ही ले लो, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये पहले कैलकुलेट करो, बाद में मैं आपको कोड पे दिखाता हूँ. 6 एंड -13, -13 मतलब कैसे निकालोगे? -13 13 का टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है -13. तो 6 एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 का आप करोगे बिटवाइज एंड उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपको मुझे बताना है. पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा रिजल्ट? ओके, काफी लोगों ने बता दिया आंसर. ये इतनी जल्दी आंसर मिल रहा है, सो इसका मतलब ये तो नहीं आप डायरेक्टली ये कोड में लिख रहे. ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए अंदर बातें कैसे हो रही है. So let's do that. 6, I am just going to write it like this: 0 0 0 0 1 1 0. This is 6. -13, 13 को मैं लिखता हूँ, 13 is going to be like ऐसे. This is 13. तो -13 is going to be like 2's complement of 8. 0 0 1 0. यहाँ पे 0 आएगा, +1 करने के बाद ये 0 का +1 करने के बाद ये 1 आएगा. दिस इज व्हाट -13 इज. तो इसके साथ मैं एंडिंग करता हूँ 1 1 1 1 and 0 0 1 1. So if you do ending of both the numbers 0 and 1, so this is 0, 1 and 1 is 1, 1 and 0 is 0, so 0 all are 0. It is what? It is +2 because ये जो है ना, ये MSB ये 0 आया, so this is going to be +2, and just we can check through the code. So that is 6 and a -13, so that is 2. That is 2. So we must able to interpret every operation in Python. Python मतलब सेम केस है आपके C++ एंड जावा में भी ऐसे ही होता है, बट अगर आपको पता नहीं है होगा तो इसलिए मैंने आपको बताया, जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन. Let's go ahead with our next topic, that is about functions, user defined functions and lambda functions or anonymous functions we can say. Okay, so let's go ahead. Functions.
user defined functions in Python. So let me tell you how do we define functions in C and C++ first. ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन से जल्दी समझ में आता है. So let's consider we are having an addition वाला function. So where that function takes two arguments and it returns addition of two numbers, and that is what the function is. So let's have that over here. So integer, that is the return type, add is the name of function, and int x comma int y in the bracket. What we are going to return? We are just going to return addition of x and y. So just return x plus y. ठीक है. सो यहाँ पे रिटर्न क्या है? रिटर्न कीवर्ड है that returns any value from this function. तो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज. वहां पे दो वैल्यूज आपके आप पास कर रहे हो फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, एंड एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है बिकॉज इट इज सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न टाइप इज इंटीजर. नाउ लेट्स वी डिफाइन फंक्शन इन पाइथन. तो पाइथन में जब मैं फंक्शन लिखूंगा तो क्या क्या आता है? तो whenever I am going to write this function into Python, पहली बात तो आपको डेटा टाइप्स देने की जरूरत नहीं. तो इसका मतलब क्या क्या जाएगा अभी यहाँ से? इंटीजर गया, ये इंटीजर गया, ये इंटीजर गया. दूसरी बात, डेटा टाइप चले गए. दूसरी बात, एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं होता पाइथन में, मतलब सेमीकोलन जैसे यहाँ पे, ये भी चला गया. देन आफ्टर दैट ब्रैकेट्स नहीं होते, करली ब्रैकेट्स, ये भी चला गया. So whatever we have remained, that is going to be a function in Python. So let me write that function. So जो भी बाकी की चीजें वो मैं अभी लिख रहा हूँ. So let's have that add in the bracket x comma y. Then after that उसके अंदर return and x plus y, because these brackets are also not needed. नहीं लिखे तभी भी चलता है पाइथन में. That's it. सिर्फ एक बात है यहाँ पे ऐड होने वाली कि मुझे बताओ यहाँ पे जो ये स्कोप है करली ब्रैकेट, ये तो करली ब्रैकेट हमने निकाल दिया, लेकिन हाउ डू वी डिफाइन स्टार्टिंग ऑफ स्कोप इन पाइथन? ये हम यूजिंग कोलन बताते हैं. सो यहाँ पे कोलन होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट वी मस्ट राइट कोलन ओवर हियर. स्कोप डिफाइन करने के लिए व्हाट वी मस्ट हैव, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंडेंटेशन होने चाहिए. दैट्स इट. ओके. सो एक चीज होती है पाइथन में दैट वी मस्ट राइट व्हाइल राइटिंग द फंक्शन, दैट इज DEF, define. This is the only new keyword that we have to use while writing functions in Python. So ये DEF ये क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट बनाता है of this function. So ये जो फंक्शन बनाता है ना, ये फंक्शन बनाता है मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ही बनाता है, because everything in Python is what? Object. Everything in Python is what? Object. So this is the simple function that we have written into Python. That's it. खत्म. ये होगा आपका फंक्शन इन पाइथन. सो लेट्स ट्राई दैट इनटू द कोड. वी कैन गो हियर एंड वी कैन राइट द फंक्शन दैट इज डिफाइन एड, अंदर था सिर्फ x कॉमा y, the start of scope, and inside the scope we have just written x plus y, and you can see here ये एडिशन फंक्शन बन गया. नो एरर मतलब ये बन गया. अभी इसको यूज करेंगे एड 5 comma 7. So you can see the result, that is 12, that is been written. So this is the simple function that we have written into Python. Okay. So और एक चीज, अभी मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, मुझे पूरा कैलकुलेटर फंक्शन अभी फाइंड आउट करना है. अभी ये कैलकुलेटर फंक्शन करेगा क्या? इट इज जस्ट going to give me values of addition of past numbers, addition, multiplication, subtraction, division. तो ये चारों वैल्यूज देने चाहिए. तो कैल्सी में बना तो कैल्सी नाम का कैलकुलेटर फंक्शन है जिसमें दो नंबर्स डालूंगा. तो ये जो दो नंबर्स है उनके सारे ऑपरेशंस मुझे रिटर्न करने हैं. तो रिटर्न में मैं क्या करूंगा?
आई विल जस्ट रिटर्न। अभी रिटर्न में मैं क्या करूंगा, चारों ऑपरेशंस करूंगा x प्लस वाई। So ultimately we are returning more than one values at a time. So this is not possible in C and C++ और Java. तो यहाँ पे पॉसिबल है। तो x माइनस जितने भी चाहे आप वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, x into y and x divided by y. So this is what function is. Now you can see that calc अगर मैंने किया 12, 5 let's say, so it is going to give us all the values। 12 plus 5 का वैल्यू आ गया 17, 12 minus 5 का वैल्यू है 7, 12 into 5 का 60 and 12 divided 5 का 2.4। so we can return multiple values at a time। अभी आप बोलोगे सर ये फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट इज टाइप ऑफ कैल्सी। कैल्सी का टाइप क्या है, इट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर आपको प्रॉपर देखना है तो इसको प्रिंट से करो, so that is what type is class function। So can I make a statement that functions are also object of class function। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस है ना, that user defined functions are of type और are of type class function। एक्चुअली इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, समझो ऐसे है कि हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है लेंथ। लेंथ इज इनबिल्ट फंक्शन। अगर इसका टाइप देखेंगे तो इसका टाइप अगर मुझे देखना है तो व्हाट आई विल डू, what I will do, that is type of length। so ये क्या बोल रहा है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड। इसको अभी मैं प्रॉपर करता हूँ और अभी, एंड नाउ वी कैन जस्ट सी इन टाइप ऑफ लेंथ इट इज वो, ये जो है ना ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किस क्लास का है, बिल्ट इन फंक्शन है। देखो ये लेंथ है ना, ये हमने नहीं डिफाइन किया, इट इज बिल्ट इन फंक्शन। सो ये अलग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये हमने बनाया, तो ये किस क्लास का, ये फंक्शन नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है। So this is your function is। now अभी ऐसा है कि आपने देखा होगा कि whenever we have used functions of strings, हमने हेल्प भी देखा था, हेल्प। तो इसका हमारे फंक्शन का हेल्प हम देख सकते हैं क्या। सो लेट्स राइट हियर ऐड नाम का फंक्शन है। तो ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, इसका मुझे हेल्प देखना है। तो व्हाट आई विल डू, शिफ्ट टैब आई विल डू। तो शिफ्ट टैब करने के बाद आपको दिखेगा कि ठीक है ये ऐड फंक्शन है, ये कहाँ पे स्टोर्ड है, इसका टाइप क्या है वो तो दिख रहा है, लेकिन हेल्प नहीं दिख रहा है कि जो हेल्प हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वो बोल रहा है कि नो हेल्प प्रोवाइडेड, डॉक स्ट्रिंग मतलब हेल्प। सो ये अगर आपको प्रोवाइड करना है तो यू हैव टू चेंज समथिंग इनटू योर डेफिनेशन। सो ये जो ऐड है ना, इसमें जो डॉक स्ट्रिंग होता है, हेल्प होता है, वो आपको ट्रिपल कोट्स में इनकोड एनक्लोज करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दिस इज एडिशन फंक्शन, दैट्स इट। तो ये स्ट्रिंग है, कीप इन माइंड दिस इज द स्ट्रिंग। लेकिन ये जो ट्रिपल कोट्स है ना, इनका पर्पस फुली हम इसको यूज करते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ पे भी नहीं यूज करते। इट इज बीन यूज टू डिफाइन डॉक स्ट्रिंग्स एंड मल्टीलाइन कमेंट्स। ठीक है। सो अगर मैंने इसको अभी फिर से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नाउ इफ आई सी the help of add, you can see here docstring is what, this is addition function। तो ऐसे आप docstring या तो help provide कर सकते हैं the functions which are you are writing। तो जो भी आप functions write करोगे उनके लिए okay। now we'll see next concept, that is variable number of arguments in function। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। तो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट मतलब क्या है कि अगर मैंने इस अभी ये जो ऐड फंक्शन है, if I want to add 3 different numbers, it is not going to add this। ये क्या बोलेगा, सिर्फ 2 ही मैंने आर्गुमेंट्स पूछे थे, आपने तो 3 दे दिए।
So that is going to be like error we can say, and we cannot pass more than 3 values or less than 2 values. दो ही एग्जैक्टली देने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमें जनरलाइज फंक्शन बनाना है which will do sum of all the numbers whatever we are passing to that function. So इसके लिए आपको यूज करने पड़ते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. So for your information I must write that over here. So variable number of arguments, variable number of arguments. तो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट मतलब द फंक्शन, फॉर एग्जांपल ऐड अगर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला है तो अगर मैंने ऐड 1,2 किया तभी भी चलेगा, या तो अगर मैंने ऐड को किया 2,3,6 तभी भी चलेगा अगर मैंने ऐड को किया 2,10,3,5,6 तभी भी चलेगा. Any number of argument we can pass to this add, and that is what we call as the variable number of arguments in functions. So now my question to you is that I want the response from your side. My question is variable number of arguments are available in C and C++? ओनली वन आंसर, बाकी के लोग सोच रहे हैं, गूगल कर रहे हैं. So in C and C++, variable number of arguments are possible. ये होते हैं वहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वहां पे यूज कर सकते हैं. सिर्फ आपको फंक्शन बनाते टाइम var args नाम का कॉन्सेप्ट होता है, var args, वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, var args. तो हे आप सर्च कर सकते हैं इसके लिए, सो var args यूज कर सकते हो. So using that you can just define your own functions of variable number of arguments. Now my second question, हर एक को आंसर करना है. Have you ever used variable number of arguments वाला function in C and C++? I am talking about. Have you ever used variable number of arguments like function into C or C++? आज तक आपने वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वाला कोई भी फंक्शन यूज किया है क्या सी या तो सी प्लस प्लस में? आंसर शुड बी एस और नो. ठीक है, सो काफी लोग ऐसे हैं कि उन्होंने नहीं यूज किया है. आई थिंक एक कुछ कुछ लोग ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब शायद बाकी के लोग सो गए शायद. तो प्लीज डोंट डू दैट. सो यस, काफी लोगों ने नो बोला है, लेकिन आई कैन गारंटी यू सारे लोग, जो लोग ने नो बोला है वो भी लोग, जो लोग सो गए वो भी लोग, सब लोगों ने
वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट वाला फंक्शन यूज किया ही है, I can guarantee you, and I will tell you that function. That function that you are used is printf. Printf, I think ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं कि विदाउट printf होता है. तो printf is variable number of argument function. कैसे? तो let's consider printf में मुझे दो नंबर्स प्रिंट करने. तो how we are going to write printf, yes, that is %d I comma j. अगर मुझे तीन नंबर प्रिंट करने हैं, प्रिंट एफ %d 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 ऑल आर इंटीजर्स I कॉमा j कॉमा k. अभी मुझे बताओ इस स्टेटमेंट पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने यूज किए आपने, एंड इन दिस स्टेटमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने यूज किए. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा. The number of arguments are always separated by comma. So now here you can see the numbers like, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा सेपरेटेड मतलब ये पहला आर्गुमेंट, ये दूसरा आर्गुमेंट, ये तीसरा आर्गुमेंट, ये पहला आर्गुमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. तो यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स भेजे. ये प्रिंटफ काम करेगा? डेफिनेटली करेगा. यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर 4, ये काम करेगा? ये डेफिनेटली करेगा. कितने भी पास करो यहाँ पे आप, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क. And that is what where printf is var args वाला function, variable arguments वाला function. Okay, so yes, मैंने गारंटी दिया था आपको आपको कि आपने अल्टीमेटली इसको यूज किया ही है, and that is what this function is. So I don't think कि आप अभी MCA में हो and आपने printf नहीं यूज किया, so that should not happen. So let's go to our Python programming and let's see uh, how to create a variable number of argument वाला function user defined into Python. So इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल एडिशन वाला फंक्शन. तो ये जो एडिशन वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैच करने हैं इनटू अ सिंगल वेरिएबल, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टार आर्ग्स. आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्टार ए भी बोल सकते हैं. सो इट शुड नॉट बी लाइक ओनली आर, स्टार ए. सो ये जो स्टार है ना, इसका मतलब पॉइंटर नहीं है. कीप इन माइंड, इट इज नॉट अ पॉइंटर. इन पाइथन वी डोंट हैव पॉइंटर्स. तो ये स्टार का मतलब है कि ये जो ए वेरिएबल है ना, दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यूज एट ए टाइम, दैट कैन होल्ड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. एंड इसके बाद में मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये प्रिंट है ना, प्रिंट करता हूँ ए में सारे वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. सो दैट इज व्हाट माय फंक्शन इज. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, ये जो ऐड फंक्शन है, इस ऐड फंक्शन को आई विल जस्ट क्रिएट 23,45,32. एंड अभी देखते हैं कि ये तीनों की तीनों इस ए में आए कि नहीं आए थे. ठीक है, सो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. यस, यू कैन सी दैट ऑल केम देयर. एंड ये जो है ना, ये एक्चुअली ये कल होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, कि ये जो ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया है ना नंबर, इसको बोलते हैं टपल. इसको बोलते हैं टपल. सो ये टपल के फॉर्म में आता है एज वन ऑब्जेक्ट. एंड यस, ए इज गोइंग टू हैव ऑल थ्री नंबर्स. तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका सम प्रिंट करता हूँ. तो सम आपके पास इनबिल्ट फंक्शन है. सो सम ऑफ व्हाट, ऑल वैल्यूज इन ए. सो सम ऑफ ए, प्रिंट सम ऑफ ए. सो इफ आई डू दैट, जस्ट इट इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ दिस. फॉर्चुनेटली इन तीनों का एडिशन कितना आया, 100 आया. ठीक है, 100 ये तीनों का एडिशन. सो दैट इज व्हाट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. अभी आप एक भी भेजोगे ना यहाँ पे, एक के लिए भी ये काम करेगा. अगर आपने जीरो भेजा, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर. जीरो भेजेंगे तो बिकॉज ये सब में क्या जा रहा है, एम्प्टी टपल. सो सम ऑफ एम्प्टी टपल इज व्हाट, जीरो. ये टपल टपल भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको कल समझ में आएगा इन टुमारो सेशन. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये हो जाएगा. लेकिन दिस इज व्हाट योर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन. ठीक है, let's go ahead and discuss about next topic, that is anonymous function. तो जो पाइथन में डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट है, so that is anonymous functions.
एक्चुअली एनोनिमस फंक्शन ये मैटलैब से लिया गया वर्ड है, ये मैंने ही लिया है, ये कहाँ पे आपको मतलब ऐसे नहीं है, स्टैंडर्ड है। मैटलैब एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, पाइथन में इसको लैम्बडा फंक्शन बोलते हैं, lambda functions. Lambda is a reserved keyword that is used to define the sum functions. So what is meant by anonymous? Anonymous मतलब nameless या तो without name, without name, जिसको नाम नहीं है। अभी मैंने जो add function बनाया, so we gave the name to that function, that is name is add. Add was the name of that particular object. तो विदाउट नेम अगर आपको कुछ फंक्शन डिफाइन करना है तो आप यूजिंग लैम्बडा कर सकते हो। अब ये ऐसा कब लगेगा? सी लैम्बडा फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे यूज होगा इस लाइन पे, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन नॉट यूज दिस फंक्शन ओवर हियर बिकॉज इसको रेफरेंस नहीं है, तो रेफरेंस नहीं है तो गार्बेज कलेक्टर इज जस्ट गोइंग टू डिलीट दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ एक लाइन का काम होगा तभी ये फंक्शन हम यूज करते हैं, लैम्बडा फंक्शंस। तो ये फंक्शंस एक्चुअली यूजफुल क्यों है? द रीजन इज दैट फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ तो डेटा है, इफ यू हैव अ डेटा एंड उसमें काफी सारे कॉलम्स है, एंड इसमें एक कॉलम में फॉर एग्जांपल आपका पैकेज, पैकेज इनटू डॉलर्स। सो इसमें है पहला स्टूडेंट का पैकेज डॉलर्स में, दूसरा डॉलर्स में, दूसरे पैकेज डॉलर्स में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको एक लाइन में ये सारे डॉलर्स हटा के नॉर्मल इन रुपीज पैकेज करना है, या तो सिर्फ डॉलर मतलब ये साइन हटा के सिर्फ नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे क्या होता है, ये डॉलर को हटा के सिर्फ नंबर्स रखने के लिए फंक्शंस लिखते हैं हम। तो ये सिर्फ उसी लाइन पे होगा जहां पे हमें ये कन्वर्जन करना है, उसके बाद में कभी भी इस फंक्शन को हमें यूज करना नहीं है इन द फ्यूचर। So here we use lambda function. Here we use lambda function. Now lambda functions inline होते हैं। दूसरी बात, ये सिंपल फंक्शंस होते हैं, मतलब इसका फंक्शनलिटी होता है ना वो सिंपल। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कुछ तो है आपका रिवर्स गिवन नंबर, ऐसा जो फंक्शन है ना, ये थोड़ा सा हम बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप, रिवर्सिंग अ नंबर, दैट कोड इज थोड़ा सा डिफिकल्ट देन एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर फंक्शनलिटीज के लिए वी डोंट यूज लैम्बडा, वी ओनली यूज फॉर सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, सो ये लैम्बडा कैसे कैसे यूज करते हैं? अगर हमारा एडिशन वाला फंक्शन है ना, एक्स कॉमा वाई वाला, तो उसका अगर मुझे लैम्बडा फंक्शन यूज करना है तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सो लैम्बडा, ऑब्वियसली लैम्बडा इज द कीवर्ड दैट वी यूज इन पाइथन। तो ये डिफाइन करता है कि आगे वाली फंक्शनैलिटी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनपुट वाला पार्ट टू द लेफ्ट ऑफ कोलन लिखते हैं एंड आउटपुट वाला पार्ट टू द राइट ऑफ कोलन लिखते हैं। तो इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? एक्स कॉमा वाई दे रहे हैं, एंड आउटपुट में क्या चाहिए हमें? एक्स प्लस वाई चाहिए। तो दिस इज योर आउटपुट पार्ट, दिस इज इनपुट पार्ट। सो दिस इज जस्ट कांस्टेंट पार्ट ऑलवेज। जब भी आपको लैम्बडा फंक्शन बनाना है तो ये आपको रिजर्व्ड वर्ड, ये है आपका रिजर्व वर्ड, सो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। दिस इज इनपुट टू योर फंक्शन एंड दिस इज आउटपुट ऑफ योर फंक्शन। सो देखो ये एक लाइन में हम लिख पा रहे हैं इस फंक्शन को, तो एक ही लाइन में हम इसको लिखेंगे एंड वहीं पे यूज करेंगे। सो यस, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू इट्स एप्लीकेशन व्हाइल वर्किंग विद द डेटा सेट्स। ठीक है, सो वहां पे मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल तो इसको मैं बताता हूँ आपको कि ये हमें हमारे केस में कैसे यूज करना है लैम्बडा फंक्शन को। ठीक है, तो अगर आपको लैम्बडा फंक्शन को यूज करना है तो व्हाट वी कैन डू इज लैम्बडा एक्स कॉमा y कोलन, इट इज गोइंग टू जस्ट रिटर्न x प्लस y। तो सिर्फ हम ऐसे क्रिएट करते फंक्शन को। अभी देखो उसने बोला कि मैंने फंक्शन क्रिएट किया, तो व्हाट इज टाइप ऑफ दिस फंक्शन? दैट इज लैम्बडा। ये लैम्बडा क्लास का फंक्शन है, लैम्बडा क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी इसको, ये जो फंक्शन ऊपर लिखा है मैंने, मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ही लाइन में यूज होता है।
एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे करना वो तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल ऐसा एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास। तो ना व्हाट वी विल डू, एक काम करते हैं, इसका जो रेफरेंस है ये मैं फॉर टेम्पररी पर्पज फंक्शन वन। एक्चुअली ये गलत है कि इसको स्टोर करके रखना, ये गलत है, लेकिन ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये दिखाने के लिए मैं इसका रेफरेंस स्टोर करके रखता हूँ इनटू फन वन। तो fun one is the variable which refers to what this particular function. Now ये जो fun one है ना, that fun one I can use as the function name, and now you can see it is 12. Now we can see it is 12. So 5 plus 7 is going to be 12. That is what your function one is. That is what your function मतलब lambda function is. ठीक है। सो ये होगा आपका लैम्बडा फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है। सो this is one type of function. Next one property is also there into user defined function, that is keyword arguments. तो कीवर्ड आर्गुमेंट, सो ये कीवर्ड आर्गुमेंट होते क्या है, जब मैंने प्रिंट लिखा ना प्रिंट फंक्शन, तो आपको याद होगा ये प्रिंट फंक्शन लिखते टाइम पे मैंने कुछ तो लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई लिखा, उसके बाद में मैंने लिखा आई इंटू आई, एंड उसके बाद में मैंने लिखा सेपरेटर इज इक्वल टू स्पेस, उसके बाद मैंने लिखा एंड इज इक्वल टू अगेन स्पेस, सेपरेटर मैंने लिखा कोलन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। सो ये आई में कुछ तो 19 वैल्यू था, तो ये ऐसे आया। तो ये तो ठीक है कि मैंने ऐसा तो देखा है अभी तक फंक्शंस में, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये सेपरेटर इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये क्या है, इनको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। एक्चुअली इसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको ये सीक्वेंस ध्यान में नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस एंड को पहले लिखो, सेपरेटर को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेटर इज गोइंग टू बी कोलन, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस इज व्हाट बेनिफिट ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो ये क्यों फायदेमंद है हमारे लिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल हमें प्लॉटिंग का लाइब्रेरी यूज करना है, तो जब हम कोई प्लॉट निकालते हैं ना तो उसको बहुत सारे प्रॉपर्टीज देने पड़ते हैं, उसका एक्स क्या है, उसका वाई क्या है, देन आफ्टर दैट कलर कौन सा यूज किया है, किस टाइप का मैप है, किस टाइप का जो भी लाइन है, डैश लाइन है, थिक लाइन है, थिन लाइन है, देन आफ्टर दैट मार्कर्स कौन से यूज किए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हमें वो सीक्वेंस ध्यान में नहीं रहता, बट हमें ये ध्यान में रखता है कि हमें ये चीजें देनी है, तो जस्ट वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर नेमिंग्स टू गिव द वैल्यूज। जैसे यहाँ पे एंड एंड सेपरेटर, तो मुझे भी पता नहीं कि एंड पहले है कि सेपरेटर पहले, वी डोंट नो दैट, लेकिन स्टिल वी कैन यूज दिस इन अ फंक्शन। तो अगर ऐसे मुझे मेरे फंक्शन में यूज करना है तो हाउ कैन डू दैट, तो इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन टू नाम का फंक्शन करता हूँ, जिसमें दो पोजिशनल सॉरी दो कीवर्ड आर्गुमेंट मुझे पास करना है, एक का नाम है ए एंड दूसरे का नाम है बी। ठीक है। अभी ये जो ए है, ए का डिफॉल्ट वैल्यू मैं 0 लिख रहा हूँ एंड बी का वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 10 लिख रहा हूँ। अभी ये डिफॉल्ट वैल्यूज होते क्या है, देखो मैंने अगर इनको यूज नहीं किया, एन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या बताया था मैंने, ये बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है। तो ये कहाँ पे डिफाइन होता है, ये यहाँ पे डिफाइन होता है। अगर प्रिंट है ना हमारा, तो एंड इक्वल टू स्लैश एन यहाँ पे लिख रहा है उसके डेफिनेशन में। तो वैसे ही मुझे, मैं अगर कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज कर रहा हूँ तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देने पड़ते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट द स्टेटमेंट। सो प्रिंट यस वैल्यू ऑफ ए इज, सो उस वैल्यू को मैं प्रिंट करता हूँ, दैट इज ए एंड बी, सॉरी बी इज, उसका वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ यूजिंग b। ठीक है। सो that is what our function is. Now if I do call this function 2, I do call it like this, अगर मैंने इसको भेजा 3, 4 मतलब a को जाएगा 3,
बी को जाएगा 4। ठीक है, तो अगर वैसे देखा तो यू कैन सी द रिजल्ट, वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 4। ठीक है, एक्चुअली ये स्पेसिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज सेपरेटर हमारा स्पेस ही है। सो नाउ यू कैन सी वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 4। अभी ऐसा कंसिडर करो कि आपने ये बी का वैल्यू भेजा ही नहीं, तो ये तीन तीन जो वैल्यू है वो किसको जाएगा, ए को जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये जो वैल्यू असाइन होना काम चालू होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो सिंपली 3 लिखा है तो ये ए को ही जाएगा, ये बी को नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, सो इफ आई डू दैट यू कैन सी ये ए का वैल्यू 3 कर दिया, बी का तो 10 का 10 वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो यू कैन जस्ट सी दैट ए का तो 3 बन गया लेकिन बी का तो वैसे ही 10 का 10 है। अभी ऐसे कंसिडर करो कि हमें ध्यान में नहीं है कि पहले ए देना है कि बी देना है, सो मैं क्या करूंगा, अभी बी को पहले दूंगा। सो बी में मैंने लिखा है 45 एंड ए में मैंने लिखा है लेट्स कंसिडर 22। तो देखते हैं, मैंने पहले वैल्यू तो भेजा है 45 का, सॉरी बी का, एंड दूसरा वैल्यू भेजा है ए का, तो ये प्रॉपरली ए में ही जाएगा क्या या बी में ही जाएगा, वो चेक करते हैं। तो देखो ए का वैल्यू 22 है, बी का वैल्यू 45, मतलब ये प्रॉपरली जा रहा है। तो हम इसको कहाँ पे भी लिख सकते हैं। Yes, we can put these values anywhere in the sequence. So this is about your functions is. This is about your functions is. ठीक है, सो अगर इसमें कुछ डाउट है फंक्शंस लूप्स में एंड फंक्शंस में, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी द डाउट। Just keep note of these two assignments that you have to do at home and that must be ready tomorrow. Okay, so these two are home assignments to you. So just do practice at your home. Try by yourself. Okay, so just keep note of these home assignments. Okay. You can use any concept that we have studied today. Doubt है तो please ask.
This is for today. Actually, we are going to start with what we can say data structures tomorrow. हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे टुमारो लिस्ट वगैरह जो भी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है जस्ट डोंट मिस दैट सेशन डेटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टाइप नो एटलीस्ट हमें ये तो देखने दो आप मतलब जाग रहे कि सो गए हो ओके थैंक यू अगर ऐसा ऐसा कुछ अलग सा डाउट है मतलब इट इज नॉट लाइक कि ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन ही होना चाहिए इन जनरल अगर ऐसा कोई डाउट है तभी भी आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो And one more thing is that whatever the speed we are going with, is that okay with you people? Because are you able to grasp or whether it is going to be very slow or whether it is going to be very fast? If that's so, also you can share with me because ultimately I am your trainer, so I must know whether the speed is like proper or we must be synchronized. हाँ? ऐसा है तो भी बता सकते हैं आप फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है ऐसा कुछ है तभी भी बता सकते हैं नो इश्यूज and keep in mind that your are these sessions must be like interactive huh? So it is the workshop so actually don't get benefit that we are not meeting in the classroom अगर क्लासरूम में होता तो कैसे होता है कि आप क्या कर रहे हो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप कर रहे नहीं कर रहे ये दिखाई देता है यहाँ पे नहीं दिखाई देता सो ये आप करना चाहिए मतलब सिंसियरली यू शुड डू इट एट योर ओन प्लेसेस जब मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो ठीक है actually, I will leave 5 minutes early because I have a call, client call at 4 o'clock. So थोड़ा सा सेटअप करने के लिए मुझे 5 मिनट पहले जाना पड़ेगा. Thank you for your response. All is okay. Okay, thank you. So should I leave the meeting because it will be better for me if I leave right now. Thank you, thank you, thank you for your response.